So good morning all. This will be the second class for the atom, and there we will start with the spectral series analysis. So let's start with the spectral series analysis of atom with the important concept called Rydberg formula. This is the most important concept called Rydberg formula. So we will discuss about the Rydberg formula and how to derive the Rydberg formula, and the small basic concepts will be there. One by one we will start. I'll again start with two important things. One is total energy, which we derived yesterday. It is minus of half k z e square upon r. Formula number one is for the total energy. And then if you will calculate r, it must be equals to n square h square upon 4 pi square m k z e square. Just put the value of R in this expression. So here total energy, the general expression for total energy looks like half k z e square upon n square h square into 4 pi square m k z e square. Now just simplify this expression. It will become 2. And the final expression becomes minus 2 pi square k square z square e4 upon n square h square. This is expression for the total energy. General expression independent of r, we have this expression 2 pi square k square z square e4 upon n square h square. Of course, one m is also there, so we cannot neglect this m. So m is also there. All other are in power except m. M is there without any power expressions. If you will see the Bohr third postulate, the third postulate is simply saying that whenever electron will take transition from higher level to lower level, then E2 minus E1 must be equals to h nu, that is hc by lambda. अब इस एक्सप्रेशन में हम देखते हैं बाकी की सारी चीजें कांस्टेंट है, सिर्फ n के लेवल है 1 2 3 4 5 6 जो भी हमारे पास में लेवल है. इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं h c अपॉन लैम्डा. इट बिकम्स माइनस साइन को ऐसे ही रहने देते हैं 2 कॉमन पाई स्क्वायर कॉमन k स्क्वायर कॉमन z स्क्वायर e4 m अपॉन h स्क्वायर. ये सारी चीजें हमने कॉमन ले ली. अंदर सिर्फ बचा हमारे पास में 1 अपॉन n2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n1 स्क्वायर. बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, इसलिए मैंने इसको यूं का यूं लिख दिया. सो 2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर z स्क्वायर e4 m अपॉन h स्क्वायर. अंदर आ गया 1 अपॉन n2 स्क्वायर 2 के लिए 1 अपॉन n1 स्क्वायर. देखिए यहाँ नेगेटिव साइन आ रहा है. अब नेगेटिव साइन को अगर मैं इग्नोर करना चाहूं तो मैं इसको इस नेगेटिव साइन को अंदर ले सकता हूं. सो आई एम अगेन writing the expression in this manner. h c by lambda is equal to, सबको पॉजिटिव कर दो, 2 pi square k square e4 upon h square 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. Of course z मेरे पास में बचता है, और जब भी मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं तो हाइड्रोजन के लिए z इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूं इस एक्सप्रेशन से. सो z को मैं इग्नोर कर रहा हूं फॉर हाइड्रोजन एटम. यहां से इसको फिर देखते हैं 1 अपॉन लैम्डा 2 कांस्टेंट पाई स्क्वायर कांस्टेंट k स्क्वायर कांस्टेंट e4 कांस्टेंट c h क्यूब स्क्वायर और h 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. इस पूरे एक्सप्रेशन में ये वाली सारी चीज एकदम कांस्टेंट है, सारी वैल्यूज इसकी नॉन है. सो फाइनली आई कैन राइट फॉर वेवलेंथ इट्स RH 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square.
कुछ बुक्स में आर जेड मिल सकता है, कुछ बुक में आर एच मिल सकता है, जो भी है, बट दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट constant called Rydberg constant. So in terms of Rydberg constant, finally you can write that the value of RH is 1.096 into 10 raised to power 7 per meter. ये है हमारे पास में इस कांस्टेंट की वैल्यू ऐसा ही यूनिट के अंदर। तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा 1 अपॉन लैम्डा RH 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. This formula is in totality called the Rydberg formula for wavelength of light 1 upon lambda RH 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. अब देखिए, मुझे बाय द वे ट्रांजिशन चाहिए। n1 है मेरे पास में 1, n2 है मेरे पास में 2। इस सिचुएशन में मुझे लैम्डा निकालना है। सो आई विल सिंपली राइट, एक इलेक्ट्रॉन है जो 2 से 1 के अंदर जंप कर रहा है, व्हाट विल बी वेवलेंथ रेडिएटेड? आप कहोगे RH 1 upon 1 square 1 upon 2 square। कितना बन गया? 1 upon lambda equals to RH 1 minus 1 upon 4। हमेशा याद रखें, जो भी हायर है उसको पीछे रखना, अदरवाइज वेवलेंथ नेगेटिव में आएगा। वेवलेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता, वेवलेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो बी केयरफुल। तो आपने यहां से इसको देखा, दिस इज कमिंग आउट टू बी RH एंड दिस इज 3/4। So finally, if you want to write down that what is the wavelength, then lambda becomes 4 upon 3RH। आप इसको इस फॉर्म में, क्योंकि RH is a universal constant, इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। If you want to represent in terms of meter or etc, RH की वैल्यू डाल दो इस पे, so you will get the value in your meter also। But this kind of transition, whenever electron will jump from 2 to 1, whenever it is from 3 to 2, 5 to 4, आप हमेशा इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं किसी भी स्पेक्ट्रल सीरीज का एनालिसिस करने के लिए। अब देखिए, इससे हम स्पेक्ट्रल सीरीज को फिर से वापस देखते हैं एक बार कि स्पेक्ट्रल सीरीज एनालिसिस कैसे होगा, लाइमन बार्बर सीरीज और पामर सीरीज कैसे आएगी। सो उसके लिए वी हैव द रिजल्ट फॉर यू। So now general formula is 1 upon lambda RH 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square। इसे एनालाइज करें अगर, सबसे पहले लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में n1 की वैल्यू होती है हमेशा 1 और n2 हो सकता है 2, 3, 4, 5 से लेकर इंफिनिटी तक। ये जो भी ट्रांजिशन होंगे कि इन सब से यहां पर अगर आ रहा है तो हम इसको बोलेंगे लाइमन सीरीज। बामर की बात करूं, n1 को ले लो आप 2, n2 को ले लो आप 3, 4, 5, 6 से लेकर इंफिनिटी तक, ये सारे बामर में आएंगे। पास्चल अब एक एक बढ़ता जाएगा। n1 must be equals to 3, n2 must be equals to 4, 5, 6 से लेकर इंफिनिटी तक, तो आपके पास में आ गया पास्चल सीरीज। नाउ इन सब का एनालिसिस करने के बाद इफ यू विल सी, आप इसको एनर्जी स्पेक्ट्रम डायग्राम पर भी देख सकते हैं। ये n इक्वल्स टू 1 है, ये n इक्वल्स टू 2 है, ये n इक्वल्स टू 3 है, ये n इक्वल्स टू 4 है, ये n इक्वल्स टू 5। हमेशा ध्यान रखें n इक्वल्स टू 1 इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट, n इक्वल्स टू 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट और फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। सो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट से थर्ड एक्साइटेड स्टेट में आया तो n इक्वल्स टू 5 और n इक्वल्स टू 3 रखना है। एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट एक्सेट्रा। अगर इन सब से 1 में आए इसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये कहलाएगा हमारे पास में यहां से जो ट्रांजिशंस निकलेंगे दे आर कॉल्ड लाइमन।
लाइमन सीरीज हमेशा लाई करती है अल्ट्रा वायलेट रीजन में, बामर सीरीज हमेशा लाई करती है विजिबल रीजन में, पास्टन सीरीज हमेशा लाई करती है इंफ्रारेड सीरीज में, और इसके बाद की जितनी भी हायर है लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड एक्सेट्रा, सारी की सारी जो हमारे पास में सीरीज आती है वो अब हायर टर्म्स के अंदर चलती जाएगी। आगे की आगे सीरीज सारी इंफ्रारेड के अंदर जाएगी। So we have Lyman, we have Balmer, we have Bastian, etc. etc. It looks like this. अब यहां से देखते हैं, ये सब जो गिर रही है, अब यहां पर जो भी हमारे पास वेवलेंथ निकलेंगे दे आर Balmer। इन सबसे अगर थर्ड में आए वी हैव Bastian। So if question explain spectral series analysis, आपको रिडबर्ग फॉर्मूला देना है और उसके बाद में इस सीरीज का पूरा एनालिसिस करना है, तो अपने आप आपकी सारी सीरीज जो है वो विजिबल फॉर्म के अंदर आ जाएगी कि लाइमन कैसे मिली, बामर कैसे मिली, पास्टियन कैसे मिली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब देखिए यहां पर मैं कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। भाई मैं लाइमन की बात कर रहा हूं। लाइमन में मेरे पास में n1 हमेशा 1 है, n2 की वैल्यू मेरे को मिल सकती है 2 से लेकर इंफिनिटी तक। मैं पहला ट्रांजिशन लेता हूं n2 इक्वल्स टू 2 टू n1 इक्वल्स टू 1। 1 upon lambda must be RH 1 upon 1 square minus 1 upon 2 square। अभी जो सामने देखा था 3/4, what you will get is 4 upon 3 RH। This is lambda। दूसरा ट्रांजिशन लेते हैं n2 इक्वल्स टू इंफिनिटी टू n1 इक्वल्स टू 1। This is 1 minus 0, so lambda becomes 1 upon RH। इन दोनों को कंपेयर करिएगा, 4 upon 3 and 1 upon RH। Naturally, this is called the longest। जो बिल्कुल नियरेस्ट होंगे उसमें हमारे पास में आएगा longest wavelength, और जो सबसे दूर आएगा उसमें आ जाएगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। So whenever transition takes place between any two nearest orbits, you get the longest wavelength. If the transition will take place the longest way, infinity to 1, what you will get is basically the shortest wavelength। हर जगह बाय द वे बामर में आपको निकालना है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालो, तो शॉर्टेस्ट में n2 इक्वल्स टू इंफिनिटी, n1 इक्वल्स टू हो जाएगा 2, वो बामर का शॉर्टेस्ट हो जाएगा। और बामर का लॉन्गेस्ट निकालना है n2 इक्वल्स टू 3 टू n1 इक्वल्स टू 2 के अंदर हमारे पास में बामर का आ जाएगा। तो जो बिल्कुल पास वाले हैं, दिस इज यू नो द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आएगा इन दोनों रेंज के अंदर, शॉर्टेस्ट आएगा जब आप इंफिनिटी से कहीं पर भी आ रहे हो। एक रिजल्ट ये स्टैंडर्ड है जो हमेशा याद रखना है, क्वेश्चंस में कई बार लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट की बात आती है। सो दिस इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अब दूसरा लिखिएगा ऐसा ही एक रिजल्ट और, हमें ये मालूम है दैट E2 minus E1 is equal to h nu, that is equals to hc by lambda। आपको n की वैल्यू नहीं देके आपको एनर्जी दे रखी है, अगर E2 minus E1 आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां पर भी हमेशा याद रखनी है, इफ एनर्जी इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कभी भी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी दे रखी हो, पुट
HCS 12,400 और वेवलेंथ की डायरेक्ट वैल्यू आएगी 12,400 अपॉन ये जो भी एनर्जी का डिफरेंस दे रखा है इन एंगस्ट्रम। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट इज देयर, कोई सा भी ट्रांजिशन हो, अगर एनर्जी दे रखी हो HC का प्रोडक्ट 12,400 आप यहां पर रखें और डिवाइड बाई 2 माइनस E1 कर दें, आपका डायरेक्ट वेवलेंथ आ जाएगा। तो एक तो आप हिटबर्ग फॉर्मूला से वेवलेंथ निकाल सकते हैं, दूसरा अगर एनर्जी के ट्रांजिशंस दे रखे हो तो एनर्जी के फॉर्म के अंदर डायरेक्ट आप इससे निकाल सकते हैं। नंबर 2, एक और इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि एनर्जी का हमारा जनरल फॉर्मूला ऐसा है माइनस ऑफ 13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर हाइड्रोजन एटम। अगर हीलियम या लिथियम या कुछ भी दे रखा हो तो जेड को इन्वॉल्व करना है, अदरवाइज हाइड्रोजन एटम में आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा ग्राउंड स्टेट एनर्जी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट second excited state, third excited state, fourth excited state, अब देखिए ये सारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर है। जैसा मैंने आपसे कहा इफ एनर्जी इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आ गए। कोई सा भी ट्रांजिशन आपको उठाना है आप डायरेक्ट वैल्यू इसके अंदर रख सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल करके देता हूं, हम लेते हैं E2 is minus 1.51, E1 minus 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 से 2 के अंदर है। What will be wavelength emitted? अब देखिएगा 12,400 सीधा लिख दिया। E2 minus 1.5 minus E1, be careful about the negative signs, बाकी सब उल्टा सीधा हो जाएगा। 3.4 कितना हो गया 12,400 डिवाइडेड बाय माइनस 1.51 एंड प्लस 3.4। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा क्योंकि अब पॉजिटिव आ गया, देखिए 3.4 में से 1.51 जा रहा है, ये डायरेक्ट रिजल्ट मेरे पास में एंगस्ट्रम में आएगा। सो ये है हमारा E1 E2 E3 E4, ये तो स्टैंडर्ड फार्मूला है। स्टैंडर्ड फार्मूला से आप इसको डायरेक्ट इक्वेट कर सकते हैं इस मॉड के अंदर। कुछ क्वेश्चंस में इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होता है, बाहर से फोटोन आप फायर करते हो और फोटोन की फायरिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाता है। Let's see this one. This electron is there in the ground state. E1 का मतलब इसकी एनर्जी है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाहर से एक एक्सटर्नल फोटोन आकर इस पर फायर करता है। इस फोटोन की एनर्जी बाय द वे मान ली 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का स्टैंडर्ड फोटोन आकर इस पर टकराया। अब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी माइनस 13.6 से इसने 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लिया, दिस बिकम्स माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप चेक करोगे 1.5 का मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट या थर्ड ऑर्बिट के अंदर चला जाएगा। तो हमारा इलेक्ट्रॉन जंप करके इस एनर्जी को इसने एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करके ये आ गया यहां पर है n equals to 3, ये n equals to 2, ये n equals to 1. So when you will incident a photon on it, electron will capture that energy, it will be excited और एक higher energy level के अंदर ये excite करके चला जाएगा इसमें से। तो हमारे पास energy electron वहां पर आ गया। अब how many wavelength it will radiate? The question is how many wavelength? ठीक है, हमारे पास में अब इलेक्ट्रॉन के नीचे आने के कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो हम इसको इस एनालिसिस के साथ में कर लेंगे।
वेवलेंथ नंबर 1 कहां से कहां आया, n इक्वल्स टू 3 से आया n इक्वल्स टू 1 के अंदर। यहां से सीधा इसने ये ट्रांजिशन लिया, मैं इसको कह रहा हूं वेवलेंथ लैम्डा 1। मैं इसको ऐसे लिखूंगा, लैम्डा 1 इज 12400 डिवाइडेड बाय E3 माइनस E1। E3 मेरे पास है, E1 मेरे पास है, डायरेक्ट वैल्यू डाल दूंगा मैं इसमें। फिर देखिएगा लैम्डा 2 कहां से आया, n इक्वल्स टू 3 से n इक्वल्स टू 2 में आया। ये वाला जो वेवलेंथ है इसको मैंने कहा लैम्डा 2। अब देखिएगा लैम्डा 2 12400 डिवाइडेड बाय E3 माइनस E2। तीसरा जो इलेक्ट्रॉन 2 से था वो नीचे आया और इसको मैंने कहा लैम्डा 3। सो नाउ लैम्डा 3 मस्ट बी इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 2 टू n इक्वल्स टू 1 के अंदर आया और इसको लैम्डा 3 की वैल्यू में फिर से 12400 अपॉन E2 माइनस E1। तो कुल मिला के 3 वेवलेंथ इस सीरीज के अंदर एमिट होंगे जब भी इलेक्ट्रॉन को इस तरह का ट्रांजिशन लेगा कि वो एक्साइटेड करके हायर लेवल में चला जाए और हायर लेवल से वापस वो जंप करता हुआ नीचे की तरफ आए हमारे पास में। ये है लॉजिक आपके पास में, अगर आप पूरा एनालिसिस करेंगे एटम का। तो ये था स्पेक्ट्रल सीरीज एनालिसिस, जिसके अंदर आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता है, एक्साइट होता है, अलग अलग स्पेक्ट्रल सीरीज, लाइमन बार्मर सीरीज, कभी विजिबल में गिरती है, कभी इंफ्रारेड में, कभी अल्ट्रावायलेट के अंदर। यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की रेडिएशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स भी है। तो आप सोर्स को भी एनालिसिस कर सकते हैं एंड यू कैन सिंपली एनालाइज द वे। कहीं पर भी है, अब यहां पर अगर 12.1 की जगह कोई और होता ऐसा कि वो नेक्स्ट लेवल पे आ जाता तो हमारे पास में 4 हो जाते। 4 से फिर हम एनालिसिस करते n+1/2 वाला फॉर्मूला हमारे पास में जो चलता है उस फॉर्मूले के साथ में। बट how many wavelengths will be radiated? This is very important question. So if you will analyze this is the most important part is there. Hope so you enjoyed the way we completed this expression of spectral series. Thank you, beta.